بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور ناظرین حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید، اپنے اس کتاب کی جو ابتدا کی، تو ابتدا کرتے ہی اس کتاب کی اوتھینٹسٹی، اس کتاب کے مضبوط اور محکم ہونے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ اور یہ جو مضبوط کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے، محکم کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یہ کیوں نازل فرمائی ہے، اس کتاب کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ھدی للمتقین، کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، سولوشن ہے، ہر چیز کا اس کے اندر حل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قرآن کریم کو نازل فرما دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کیا، میں نے اختیار کیا تمہارے لیے اسلام کو مذہب کے طور پر۔ اور یہ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفہ کے دن، جمعہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی آیتیں تھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعے قیامت تک کے انسانوں کے لیے دین کا اتمام کیا، دین کا اکمال کیا، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کیا۔ وجہ یہ بیان کی کہ یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور اگر ہم کوئی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو اس کی رہنمائی کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا حل اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دی۔ اب بس بات اتنی ہے کہ ہم اس کتاب سے جتنا زیادہ ہو سکے اپنا تعلق بنائیں، اور اس سے جتنی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشی ہیں اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عبرت کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے عجیب عجیب طریقے اختیار کیے۔ کبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے، جہنم کی عذاب سے ڈراتا ہے، تو کبھی اللہ تبارک تعالیٰ عام لوگوں کے قصے بیان کرتا ہے، کبھی مثالیں بیان کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کے واقعات بیان کرتا ہے۔ ان نبیوں کے واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا، اور فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کر ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو رسول کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ کیا واقعہ تھا ان کا واقعہ یہ تھا کہ وہ عراق کے ایک شہر نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اور وہاں سب بت پرست تھے اور شرک کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی دعوت وہ پہنچاتے تھے اور وہ مانتے نہیں تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو اب ان کو آخری الٹیمیٹم دے دیجئے کہ یہ 3 دن کے بعد اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو 3 دن کے بعد ان کے اوپر پہلی امتوں کی طرح ان پر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے یہ الٹیمیٹم ان پر فارورڈ کر دیا، ان قوم کو بتا دیا، اور اس کے بعد اس قوم نے کہا یہ تو ویسے بھی ڈراتے رہتے ہیں۔ یونس علیہ السلام دیکھا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، اور 3 دن کے بعد تو عذاب، ہلاک کرنے والا عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ یہ یونس علیہ السلام وہاں سے اس بستی سے باہر چلے گئے، نکل کھڑے ہوئے، کسی دوسری جگہ جانے لگے۔ اب قوم نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام یہ پہلے بھی ڈرایا کرتے تھے، لیکن ڈرانے کے بعد بستی میں ہی رہتے تھے، لیکن اب جو انہوں نے کہا ہے کہ 3 دن کے بعد ایک ایسا عذاب آئے گا جس میں سب ختم ہو جائیں گے، تو اس واقعے کو اس عذاب کو بتانے کے بعد یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑ دی ہے، اس کا مطلب اس مرتبہ تو عذاب آنے والا ہے۔
चुनांचे उन लोगों ने तौबा कर ली और अल्लाह तबारक ताला ने उनको माफ़ भी कर दिया और अज़ाब टल गया। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को इसकी खबर नहीं हुई और वो दूसरी बस्ती के लिए निकल गए और एक कश्ती में सवार हो गए। और ये चीज़, ये अदा हुज़ूर अल्लाह तबारक ताला को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि एक नबी मेरी इजाज़त के बग़ैर किसी काम को उसने कैसे कर दिया। चुनांचे उसी की पकड़ करते हुए अल्लाह तबारक ताला बयान फरमाते हैं, इज़ अबका, इज़ उस वक्त को याद करो, अबका कि जब वो अबका भाग खड़े हुए। अबका का इस्तेमाल अरबी ज़बान में उस ग़ुलाम के लिए किया जाता है जो अपने आका की मर्ज़ी के बग़ैर भाग खड़ा हो, आका को छोड़कर चला गया हो, उसके लिए कहते हैं ग़ुलाम अब्द आबिक। तो आबिक यानी भगोड़ा ग़ुलाम। अल्लाह ताला तक कह रहे हैं इज़ अबका, उस वक्त को याद करो, अबका जब यूनुस अलैहिस्सलाम भाग खड़े हुए, निकल खड़े हुए, इलल फुल्किल मशहून, एक भरी हुई एक कश्ती में। अब उस वक्त के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि कोई दरिया के अंदर अगर कोई भागा हुआ ग़ुलाम उस कश्ती में सवार हो जाता तो वो कश्ती किसी भंवर में फंस जाती और लोग फिर उस भगोड़े ग़ुलाम को उस कश्ती से उतार देते। और उस कश्ती के साथ भी ये वाक़या हुआ। वो कश्ती भरी हुई थी जैसा कि फिलफुल्किल मशहून। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में सवार थे वो कश्ती भंवर में फंस गई। और अब पूछा गया कि कौन भागकर बोला अपने आका की इजाज़त के बगैर कौन आया है। तो चुनांचे कुरा अंदाज़ी की गई, चिट्ठी निकाली गई। कुरान फरमाता है फसाहमा, उन कश्ती वालों ने आपस में कुरा अंदाज़ी की, चिट्ठियाँ निकाली। फ़कान मिनल मुदहज़ीन, और वो हो गए धुतकारे हुए लोगों में से, यानी उन चिट्ठियों में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा कुरा डाला गया और हर मरतबा जब भी चिट्ठी उड़ाई जाती उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही आता। चुनांचे आगे आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि मुझसे गलती हुई है और अल्लाह ताला तंबीह फरमा रहे हैं। चुनांचे बाज़ रिवायतों में आता है कि वो खुद ही उतर गए, बाज़ रिवायतों में आता है कि उनको धक्का देके कश्ती से उतार दिया गया। फसाहमा फ़कान मिनल मुदहज़ीन, लेकिन जैसे ही वो उस कश्ती से उतरते हैं फ़ल्तक़महुल हूत, एक मछली, एक बड़ी मछली उनको निगल लेती है। वह मुलीम, इस हाल में कि वो मलामत कर रहे थे, जान रहे थे कि अब मुझसे गलती हो गई, मलामत मुझसे अपने आप पर मलामत कर रहे थे कि मैं अल्लाह तबारक ताला की इजाज़त के बग़ैर मैं गश्ती से निकल आया, जिसकी वजह ये चीज़ अल्लाह को नागवार गुज़री है, पसंद नहीं आई है, इसलिए ये मुसीबत में मैं मुब्तला हुआ हूँ। वह मुलीम। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, कि वो अगर मेरी पाकी बयान करने वाले न होते। अल्लाह तबारक ताला बयान कर रहे हैं कि अगर मेरी तस्बीह बयान नहीं कर रहे होते, जैसे कि उनकी तस्बीह थी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जैसे कि सूरह अंबिया में है फ़नादा फ़िज़ ज़ुलुमात, कि उन्होंने तारीकियों में आवाज़ पुकारा। क्या पुकारा? अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सुब्हानका तेरी ज़ात पाक है। अगर मैं किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होता हूँ, किसी आफत में मुब्तला होता हूँ, तो इसमें तेरा कोई ऐब नहीं, इसमें कोई तेरी कमी नहीं, तू हर ऐब से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जुल्म करने वाला हूँ, ख़ताकार हूँ, मैंने ही गलती की है। इसकी तस्बीह अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, कि अगर वो तस्बीह पढ़ने वाले ना होते, अल्लाह ताला फरमा रहे ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून, कि वो क़यामत के दिन तक, जिस दिन उठाया जाएगा उस दिन तक मछली के पेट में होते अगर वो तस्बीह बयान न करते। लेकिन उन्होंने तस्बीह बयान की और 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक ताला ने उस मछली को हुक्म दिया, उस मछली ने उनको उगल दिया। फ़नबज़नाहु बिल अराई, हमने उनको फेंक दिया, बिल अराई, एक चटियल मैदान में। वह सकीम, और वो बीमार थे। ये बतलाने के लिए कि मछली के पेट में चले गए थे, तो मछली का पेट ऐसा नहीं था कि अंदर बेडरूम बन गया हो, हॉल बन गया हो, वो पलंग में आराम से, एयर कंडीशन में आराम से थे, नहीं, वो तकलीफ़ में थे, वो मुब्तला थे आजमाइश में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे वो सकीम, और वो बीमार हो चुके थे। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल वो एकदम नर्म नाजुक होता है, लेकिन वो तो मछली के पेट में थे, तो मछली के पेट में होने के बाद बिल्कुल लागर हो गए थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हो वह सकीम, तो क्या किया अल्लाह ने? अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि हमने उनके ऊपर एक दरख्त को उगा दिया, और मिन यक़तीन, बेलदार दरख्त। और बात फरमाते हैं
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये कद्दू का दरख्त था, जिसके कद्दू की बेल थी, जिसके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से साया होने लगा, और एक बकरी का अल्लाह तबारक ताला ने इंतज़ाम कर दिया जो उनको दूध पिला दिया करती थी। ये एक वाक़या है जो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र किया है। अब इससे हमारे लिए ये इबरत क्या है? हमारे लिए इबरत ये है कि एक वक्त का नबी, एक वक्त का रसूल दुनिया की मुसीबतों में, आफतों में मुब्तला किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम और आप, हम किस शुमार में आते हैं। मसला ये है कि बहुत से लोगों ने ये पूछा कि हम इबादतें भी करते हैं, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम सदक़ात भी निकालते हैं, हम हलाल रोज़ी कमाते हैं, हराम से बचते हैं, हम जितना हो सके अल्लाह की फर्मा बरदारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी परेशानियां दूर नहीं होती, हमारे मसाइल दूर नहीं होते। कभी हमारे घर में बीमारियां हैं, कभी हमारे कारोबार में नुकसान हो जाता है, हमारे किसी और टेंशन चल रहा है जो ख़त्म ही नहीं होता। तो ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं होती? तो उसकी का जवाब इस वाक़े में अल्लाह तबारक ताला ने इबरत के तौर पर रहनुमाई की है कि अगर आप अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हो और नेक आमाल में लगे हुए हो, और अगर दुनिया की कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई बीमारी में मुब्तला हो रहे हो, तो ये एक आजमाइश है। वक्त के नबी और रसूल को भी दुनिया की तकलीफ़ें दी गईं, जैसा कि अल्लाह तबारक ताला ने वाक़े को शुरू करते कहा कि मैं आपको एक रसूल का वाक़या सुनाता हूँ। अब वो रसूल जब कश्ती में बैठे तो वो बिल्कुल खाली ज़हन थे कि मुझसे तो कोई गलती हुई नहीं है, और वो कश्ती में बैठे और उनके बाद उनके नाम पर चिट्ठी निकाली जाती है। तो हर मर्तबा एक नबी होकर, एक रसूल होकर उनका नाम आता है, तो कितनी ज़िल्लत उन्होंने महसूस की होगी, कितनी तौहीन उनकी हुई होगी कि मैं वक्त का नबी और सबसे बरगज़ीदा बंदा, सब एतराफ़ करते, लेकिन मुझ पर भगोड़ा होने का एक स्टैम्प, एक मोहर लग रही है। तो ये दुनिया में ज़लील होने की एक आजमाइश। फिर उसके बाद जिस्मानी एतबार से 40 दिन तक वो मछली के पेट में रहे। ये जिस्मानी तकलीफ़ अल्लाह तबारक, 40 दिन कुछ कम दिन नहीं होते। हम अगर किसी बाथरूम में, टॉयलेट में अगर 10-15 मिनट बंद हो जाएं तो हमारे लिए परेशानी का बायस हो जाता है। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तो 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो तस्बीह नहीं बयान करते, पाकी बयान ना करते, ललबिस फ़ी बत्निही इला यौमि यबअसून, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तक उनको मछली के पेट में रखता। मतलब इससे ये हमें सबक ये मिलता है कि दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया की जो मुसीबतें और आफात हैं, ये वक्ती है और इनका कोई मकाम और मर्तबा नहीं, क्योंकि असल ज़िंदगी और अबदी ज़िंदगी तो आखिरत की है। ये जो अल्लाह तबारक ताला ये दुनिया में जो मुसीबतों में मुब्तला करता है, आफात में मुब्तला करता है, ये आजमाइश के लिए होता है कि हम सब्र करते हैं, कि शुक्र करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला देकर भी आजमाता है, अल्लाह तबारक ताला देकर भी आजमाता है। अल्लाह नेमतों को देता है और देखता है कि ये बंदा शुक्र करता कि नहीं, और अगर अल्लाह तबारक ताला मुसीबत में मुब्तला करता है, कोई नेमत ले लेता है, तो अल्लाह देखते हैं कि ये सब्र करता है या ये उल्टे सीधे कलिमात मेरे लिए निकालता है कि अल्लाह को मैं ही मिला था, मेरा ही नुकसान करना था, मेरे ही बच्चे को बीमार करना था, मेरी ही नौकरी जानी थी, मेरे साथ ही एक्सीडेंट होना था। तो ये सारी चीज़ें सब्र के मुनाफी हैं, क्योंकि हम तो इस दुनिया में जो भेजे गए हैं आजमाइश के लिए, और आजमाइश के दो ही तरीके हैं, एक है सब्र और एक है शुक्र। नेमतों का एहसास हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो सब्र करें, और अल्लाह जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका, तेरी ज़ात पाक है, तो हर ऐब से पाक है, तेरा कोई कसूर नहीं, तेरी कोई कमी नहीं, तू कोई हम पर जुल्म कर दे ऐसा हो नहीं सकता, तू इस चीज़ से पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो गलती है, जो ख़ता है वो मेरी है, मैं ही ज़ालिम हूँ, मैं ही ख़ताकार हूँ। रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक ताला जब बंदा कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ 3 शक्लों में अल्लाह तबारक ताला कबूल करते हैं। एक तो ये कि जिस बात की दुआ मांगी जाती है, अल्लाह तबारक ताला उसी दुआ को कबूल करके उसको दुआ कबूल कर लेता है। कभी होता है कि उसने मांगा कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला वो नहीं देते, क्योंकि अल्लाह जानते हैं ये इसके लिए मुनासिब नहीं है, अल्लाह उससे बेहतर कोई चीज़ उसको दुनिया में दे देते हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जब पहली और दूसरी शक्ल नहीं होती तो अल्लाह तबारक ताला आखिरत में उसके लिए ज़ख़ीरा बना देते हैं। रिवायतों में आता है कि हशर के मैदान में सब अपने अपने अमाल के साथ खड़े होंगे, बाएं तरफ उनके बुरे अमाल और दाएं तरफ अच्छे अमाल होंगे। तो एक शख्स होगा
جس کے دائیں طرف انبار لگے ہوں گے، ذخیرے ہوں گے اعمال کے، وہ کہے گا میں نے تو اتنا کچھ کیا ہی نہیں. تو اس سے بتایا جائے گا کہ فلاں وقت میں تو نے یہ دعا مانگی تھی، وہ قبول نہیں ہوئی، اللہ نے اس کا اجر تجھے آخرت کے حشر کے میدان میں یہاں پر دیا. فلاں وقت میں دعا مانگی تھی، اس کا یہ اجر تجھ کو یہاں پر حشر کے میدان میں ملا. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بندہ یہ اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی آفتیں، دنیا کی چیزیں، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں اور بہت مختصر ہیں، جن کو ہم جب انشاءاللہ حشر کے میدان میں یا آخرت میں ہم جب دیکھیں گے تو آخرت کے مقابلے میں یہ بالکل کم محسوس ہوگی. اور ہمارا کام ہے ہم عبادتوں کو، اچھے کام کو اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے رہنا ہے. اگر اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کسی مصیبت میں، ابتلا میں آزمائے جاتے ہیں تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے، سر تسلیم خم کرنا چاہیے. ہاں لیکن ہم کمزور ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، آزمائش میں مبتلا نہ کر بلکہ عافیت کی زندگی عطا فرما. امید کرتے ہیں کہ ہم صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.